again. First of all, we go again to my unit 1 topics. Okay, so in this topic we cover our plane table surveying principle, accessories requirement, methods of the plane table surveying. Okay, 2 point and 3 point problem are the parts of resection. So we already covered those points, and we left with this use of Elidate telescopic Elidate. Okay, so this is the remaining topic. Before going to the last one topic, I will cover the advantages and disadvantages of plane table as written here. So first advantages is it is the most rapid method for surveying. Okay, so please underline this most rapid method for surveying. Is it clear to you? So this is the rapid method. The second one is there is no field book as plotting is done along with the field work. So problem of mistake in field book notes not arise. In simple words, this sentence is saying here, because you have a drawing sheet which you called as a map. So whenever you are going to ranging your point, you are uh, simultaneously draw that point on your drawing sheets. So no need of field book for this सर्वे. इज इट क्लियर टू यू? तो जब फील्ड बुक ही नहीं होगी तो फील्ड बुक में जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो प्रॉब्लम हमारे नहीं होंगे, जो फील्ड बुक में एरर हो सकते हैं वो भी नहीं होंगे. तो ये हमारा दूसरा एडवांटेज है. थर्ड एडवांटेज इज रिलेटेड टू द वर्क. द प्लॉटिंग वर्क कैन बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपने ऑब्जेक्ट देखा है, ठीक है, कंपेयर विथ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, इट इज अप टू यू. लास्ट टाइम आई गिव यू एन example of a building. So in that building case, this building was drawn on your drawing sheets. ठीक है, कहीं पे आपकी ये plane table है, this is your plane table and I am going to drawing in my horizontal plane. So I can say this is my y direction, this is my x direction. So this one, maybe this one must be look like a 65 centimeter to 75 centimeter plane table drawing. Okay, so over this you are going to identify the point A and B. So these are the point A and B. Where your plane table is centered is the point small c. Okay, so the ground पे जो point होगा वो क्या होगा, वो point होगा आपका कहीं पे capital C. Okay, and this point must be like this one. तो स्मॉल सी आपने यहाँ पे करता है. नाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दीज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी विच इज द कॉर्नर ऑफ दिस बिल्डिंग वन on your drawing sheet. So simply we are going to the radiation method, and in the radiation method you have a adilate here, and this adilate, with the help of this adilate you are going to provide a rays toward the point A and B. And after the providing rays with the help of change surveying and any measurement instrument, you are going to measure the distance between line A to C and line B to C, actual distance. Okay, that actual distance is converted with the help of a scale, and then it is with the help of a scale you will be provide here. तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे स्मॉल a एंड स्मॉल b बना दिया. ठीक है, तो देखिए आपने बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, you are just identify the corner point of your building on your drawing sheet. तो इसके बीच में इस बिल्डिंग पे यहाँ पे एक दरवाजा होगा कहीं पे, ठीक है, इस एरिया पे दरवाजा होगा, यहाँ पे विंडो होगी, लिंटल्स होंगे, तो वो डिटेलिंग आपने यहाँ नहीं दी है. तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द प्लेन टेबल. ठीक है, जो आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखा है उसको आप जरूरी नहीं है कि उसको आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, नॉट दे आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड. क्लियर है, जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको आप जरूरी नहीं है कि उसको आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सिर्फ एच पॉइंट से भी आपके काम चल सकते हैं. तो यानी कि प्लेन टेबल में यू आर नॉट गोइंग टू डिटेलिंग टू मच.
तो आप ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते. दैट्स वाई दिस मेथड इज रैपिड मेथड. इज इट क्लियर टू यू? Is it clear to you or Yes, not? sir. Okay, Yes, sir. thank you for the validation. देखो अगर रैपिड मेथड है तो रैपिड मेथड का मतलब ये है कि कोई चीज़ फटाफट हो रही है. उसके लिए क्या होगा फटाफट कि हम उसको मोटा मोटा काम कर रहे हैं, डिटेलिंग पे नहीं आ रहे. सो दिस इज द फर्स्ट 3 advantages of plain table. Now I am moving the fourth point. There is no possibility of overlooking any important object. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम किसी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं. हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम किसी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. ये ऐसा इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट विद योर नेकेड आईज. ठीक है, तो जहां तक आप अपनी आईज से देख सकते हैं, जहां तक आप अपनी आईज से डिटेलिंग कर सकते हैं, वहीं तक ही आप प्लेन टेबल को परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. कि ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि आपने एच पॉइंट तो फाइंड कर दिया रेंजिंग रॉड की हेल्प से ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे दिस इज योर डोर, दिस मस्ट बी योर विंडो, तो ये डोर एंड विंडो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसलिए इसकी शार्प डिटेलिंग नहीं कर पाओगे. तो ये एक एडवांटेजेस है यहाँ पे. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग एनी मेजरमेंट एज प्लॉटिंग इज डन इन द फील्ड. तो सिमिलरली वही बात आ गई कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डोर एंड विंडो यू आर नॉट आइडेंटिफाई, सो इसका मेजरमेंट भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. ओके, overlooking any measurement as plotting is done in the field. तो ये आपका हालांकि क्या है, देखो ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस है, बट हमको अपना क्या करना है. प्लेन टेबल से हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं. बेसिकली वी आर गोइंग टू सर्वेइंग अवर लैंड विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल. तो कोई बाउंड्री लाइन कितनी दूर है, देखो मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ. We will take a quick example for that. Suppose this is your land and you are going to define the boundary of this land on your drawing sheets. तो इस लैंड के जो अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक दिस इज O1, O2 एंड O3. O1, O2, O3 की हेल्प से आप क्या करते हो, यू आर वैलिडेट योर लाइंस कि ये लाइंस जो आपने ड्राइंग में बनानी है, how much distance it will be from the different objects so that you will validate this line. क्लियर है ना. अब आपको एक्चुअल में काम क्या करना है, एक्चुअल में तो आपको ये लाइन जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से है इसको मेजर करना है, इसका पोजीशन आपको बताना है, लोकेशन एंड पोजीशन, इन्हीं में आप पॉइंट्स को बताते हो. लेकिन आप कुछ पॉइंट्स क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के किनारे भी रख रहे हो. ठीक है, ये इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये बता रहे हो कि जो आपने ये लाइन बनाई है अपनी ड्राइंग शीट्स में वो कितनी वैलिडेट है. तो उसको वैलिडेट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट्स की हेल्प ले रहे हो. ठीक है, तो ये इस चीज के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. बट ऐसा ना हो जाए कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग चले गए. सपोज इस पोर्शन पे, इस पे यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अवर एम is only to identify the points or to identify the location of this line on your drawing sheet. आप मैप बना रहे हो, बेसिकली ग्राउंड का मैप बना रहे हो. वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा था कि हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए, हमें मैप बनाना है फटाफट. ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept very well. Otherwise, just look at the highlighted portion. Yes, sir. Just look at the highlighted portion and note down the highlighted portion. It will be useful for you. And now I'm going to the sixth point. In the sixth point, irregular objects may be represented irregularly. Irregular objects, okay, maybe, see, may be represent accurately. For this case, again I am moving to our diagram portion, and in this case I am going to take a
irregular object 2. So how I represent this object 2 on our drawing sheets? I just take one point here, 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 similarly here. So this point A, B, C, D and E, these are the points I am taking on the perimeter of this object one. Now how I accurately represent, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये irregular body को accurate क्यों करता हूँ. So first of all you will take plane table at this position. इस पोजीशन से आपने क्या फाइंड करना है, आपने E की पोजीशन, A की पोजीशन एंड सिमिलरली आपको B तो दिख नहीं रहा तो E A की पोजीशन आपने फाइंड आउट करनी. फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्लेन टेबल को यहाँ मूव करोगे. ठीक है, अब आपने फिर से यहाँ पे क्या करोगे, E की पोजीशन, A की पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे. फिर आप इस प्लेन टेबल को आगे तक ले जाओगे, वहां से आपको क्या पोजीशन फाइंड आउट करोगे, A की पोजीशन, B की पोजीशन फाइंड आउट करोगे. तो you can see that the position 1, position 2 and position 3, there are 3 positions of plane table and you are taking the exact measurement of position 1 to A, position 2 to A, Excellent, sir. position 3 to A. Yes please. सर इसमें जो है अलग अलग पोजीशन से लेंगे कि वो एक ही पॉइंट से लेंगे सबकी पोजीशन? बेटा अगर ये एक बिल्डिंग का है, इरेगुलर बिल्डिंग है, तो आप एक पॉइंट से री सेक्शन में क्या करते हो, आप इंटरसेक्शन और रीसेक्शन में करते क्या हो, एक पॉइंट है आपने इसको यहाँ से देखा, ठीक है, फिर प्लेन टेबल को यहाँ शिफ्ट कर देते हो, फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे जब आप सेंटरिंग करोगे फिर से ये पोजीशन देखोगे, तो इस तरीके से रेस बनेगी ना आपकी, एक रेस यहाँ बनेगी, एक रेस ये वाली रेस यहाँ पे शो कर दी और यहाँ से यहाँ जो रेस बनी, जो ये पॉइंट होगा यही आपका क्या होगा, P एंड स्मॉल p. हम ऐसा करते थे ना इंटरसेक्शन मेथड में. यस सर. ठीक है, तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डिलीवर हियर फॉर द पॉइंट A. Due to these three measurements, I am going to accurately measure my A point. ठीक है, बार बार रिपीट करने की वजह से मैं एक्यूरेटली कर पा रहा हूँ A पॉइंट को. सिमिलरली फॉर E पॉइंट आई टेक टू मेजरमेंट फॉर द E पॉइंट फॉर पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2. तो उससे मेरी क्या आती है, एक्यूरेसी आती है इरेगुलर बॉडी के ऊपर भी. ठीक है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना उनमें भी मेरी एक्यूरेटली आ सकती है, बट दैट्स व्हाई हियर इट विल बी डिपेंड ऑन योर प्रोसीजर कि आपने उसको कैसे कंडक्ट किया है सर्वे को. दैट व्हाई दे टेक हियर मे बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ब्लू वाली लाइन से, और उससे हमें ए बी सी डी ई जो भी ये पॉइंट्स है इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये कितना दूर है इस मेन लाइन से. इज इट ओके? Is it okay to you? Yes sir. Okay. Yes, now I am moving to my 7th point. It is suitable in magnetic area. Why it is suitable in magnetic area? Because whenever you are doing traversing, like this, my point number 1, point number 2, point number 3 and station number 4. So okay, so these 1 2 3 4 are my stations, and if you are doing here compass traversing or compass serving, simply you are this is the example of close traversing, because 1 to 2, 2 to 3, 2 3 to 4 and again 1. so this is the close traversing connecting of 4 lines. तो ट्रैवर्सिंग हो गया. अगर आप इसे कंपास से करोगे तो कंपास तब तक एक्यूरेटली वर्क करता है जब तक कोई प्रॉब्लम या कोई डिक्लिनेशन उसमें ना आए, ना डिक्लिनेशन आए ना डिप आए. ठीक है, तो अगर कोई मैग्नेटिक एरिया में ट्रैवर्सिंग करता है, कंपास सर्विंग करता है, तो उसकी जो रीडिंग्स होगी दे नॉट माइट बी क्वाइट इनफ और एरर फ्री नहीं होंगी वो रीडिंग्स. दैट्स व्हाई इन द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कंडक्ट अवर प्लेन टेबल सर्वे. ठीक है, now I am going to 8th point. The map can be prepared easily. Okay, map can be prepared easily and does not require any great skills. Okay, so this is the very simple points. I think why it is very easy. It is easy because it is rapid and it does not require any skills, because everything on plane table is very conventional accessories. Okay, right, conventional accessories हैं plane table के ऊपर, like your compass which give you the position of north, then you have a U fork,
which is not a digital equipment. Again you have a LED. Again that LED is not a digital. So if your equipment are very conventional, they are not upgraded to the digital devices, then you don't need any high skills to operate those accessories. So this is the conclusion of your 8th point. Now I am going to 9th point, and in the 9th point it says that errors in measurement and plotting can be detected by check lines. Okay, now you will tell me what you mean by check lines. Anyone else? कोई है जो मुझे चेक लाइंस के बारे में बताएगा? We have main line, right? Then we have tie line and we have check line. What is the difference between these three lines? This is the core concept of surveying 1. बताइए, any idea? Main line, what is the difference between these three lines? Okay, I will tell you. If the line between two main stations, station 1 is nomenclated by A point and station 2 is nomenclated by B point, the line drawn between two main stations is known as main line. Is it clear to you? Then we have a tie line. Yes, sir. Tie lines means if we have two different stations which is known as your tie stations. ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, and this is my object, and similarly this is tie station 1 and tie station 2. So we have 2 points. The first point represent the tie station 1 and second point represent tie station 2 on the object. So the line drawn between these is known as tie station. So these tie stations is never from the Thailand. main line. What about the check lines? Check lines क्या होती है? चेक लाइंस में हम एक सब्सिडरी स्टेशन लेते हैं. क्या लेते हैं? सब्सिडरी स्टेशंस लेते हैं, एंड देन वी ड्रॉ अवर line from the subsidiary station to the objects like this. So the third one, ये वाली लाइन जहाँ हमने subsidiary station is a part of main station जैसा ही होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट जो उसका फिगर होता है वो भी बनाते हैं वैसे ही. तो subsidiary station से अगर मैंने ये जो 3 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट का, then this is my check lines. So with the help of these type of check lines we will detect our error. Okay, and the last advantage is inaccessible points can be easily located by intersection. So this is very important points because it is a part of method which is used in plane table. So I think the advantages points, please note down the highlighted portion, and I think the advantage points are now you are understand very well. And now I am going to discuss disadvantages. As you can see, there are only 5 disadvantages for plane table. The first disadvantage is the plane table is not suitable for accurate work. Okay, right? इसमें क्या होता है, जो हमने एडवांटेजेस बोले उसका उल्टा होगा, तो एक्यूरेट वर्क हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया. लेकिन एक्यूरेट वर्क ना करने की वजह से हमारा प्लेन टेबल क्या होता है, फास्ट होता है, तो वो हमारा एडवांटेजेस है. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? As the fitting arrangement is not perfect. And what you mean by the fitting arrangement? It is used in the close traversing concept. जब हमें किसी फील्ड को क्लोज करना है इस तरीके से या किसी भी फिगर वाइज, तो वहां पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज वी आर गोइंग टू फिट दिस फिगर. तो ये एक डिसएडवांटेज है. Second point says that plane table surveying is not suitable in wet climate.
and this is very important. In rainy season or foggy morning and in windy weather. Rainy season, you cannot draw anything on your drawing sheets. Oh, समझ रहे हो? On foggy mornings, you cannot see your object with the help of LED, and in windy weather, you cannot measure the actual distance between map points and the points which is considered as objects on the ground. तो windy weather में वो problem आपको face करनी पड़ सकती है. The third disadvantage is the number of accessories required in survey is large and they are likely to be lost. So this is the another disadvantages. We have plumb bob, we have U-fork, then we have bubble tube, LED, ranging rods, drawing sheets, wooden plain table top. Then we have tripod. So these are the different accessories related to plane table. So चांसेस हैं कि आप इनमें से कोई ना कोई मिस्टेकली या तो लैब से ना उठाओ या फिर अगर आप लेके गए तो कोई गुम रास्ते में हो जाए, तो ये एक चांस रहता है. इन केस ऑफ लार्ज सर्विंग एरिया, जब आप बहुत बड़ा एरिया को सर्वे कर रहे हो तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है. हाँ, अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो, जैसे 2 घंटे का सर्वे कर रहे हो, तब आपको ये लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर आपका 2 दिन का सर्वेइंग वर्क है, ठीक है, या 1 महीने का सर्विंग वर्क है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप कोई ना कोई एक्सेसरीज गुम कर दो. फोर्थ डिसएडवांटेजेस इज द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी. ऑब्वियसली जब एक्सेसरीज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा एक्सेसरीज को कलेक्ट करना भी डिफिकल्ट होगा और उनको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होगा फॉर 2 पर्सन. वन इज लीडर एंड वन इज फॉलोअर. तो सर्विंग में 2 पर्सन हमेशा होते हैं, मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए. द थर्ड वन कैन बी टेकन एज ए रीडिंग और द नोट्स मेकर. तो थर्ड पर्सन को आप नोट्स मेकर कह सकते हो जो फील्ड बुक वगैरह फिल करे, बट एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए सर्विंग के लिए. तो उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी सारी चीज़ें ले जाना. उसके बाद एरोज भी ले जाने होते हैं, हमें फिट करने होते हैं. तो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑल द इंस्ट्रूमेंट एट द सेम टाइम. And the last one is related to the map. The map cannot be replotted to a different scale as there is no field book. Okay, so due to absence of field book, we cannot represent another scale for the same map. I think is it clear to you advantages and disadvantages of plane table? देखो फील्ड बुक Yes, का मैं बता देता हूँ लास्ट का, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, वरना फील्ड बुक आपकी इस तरीके से होती है. फील्ड बुक में आप पॉइंट्स इस तरीके से देते हो, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, इसके बीच की लाइन, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं करते हो. ठीक है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे हैंड पंप है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे सड़क जा रही है इस तरीके से. ठीक है, तो हम इस तरीके से सड़क जा रही तो रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड बुक में. अब ये फील्ड बुक में आप यहाँ पे फोर बेयरिंग लिखते हो, यहाँ पे बैक बेयरिंग ऑफ द पॉइंट लिखते हो, देन यू चेनेज बनाते हो इस तरीके से ताकि आपको ए और बी की डिस्टेंस मिल जाए. तो सपोज दिस इज 100 मीटर का चेनेज हो गया, यहाँ से आपने जीरो से स्टार्ट किया था 100 मीटर. तो इन सब की हेल्प की वजह से आप इसको नए स्केल पे बना सकते हो. मतलब आप इसको इतना बड़ा तो कर ही सकते हो. ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको जूम आउट कर दिया, जूम इन किया एक तरीके से. ठीक है, ठीक है, ये जूम इन कर दिया. बट दिस इज कैन नॉट बी हैपन इन केस ऑफ प्लेन टेबल ड्राइंग शीट्स, बिकॉज प्लेन टेबल ड्राइंग शीट्स में आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया सी पॉइंट, स्मॉल सी, यहाँ पे आपने स्मॉल ए बनाया, स्मॉल बी पॉइंट बनाया. ठीक है, एंड देन दिस लाइन ए बी एंड ए सी इज डिजाइन बाय सम स्केल, जो आप यहाँ पे लिखते हो स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मीटर करके. अंत तक हमने सारे फिगर्स में. अब अगर आपको कोई बोले कि ये ए सी बी अगर आपको किसी दूसरी ड्राइंग शीट पर बनानी हो, तो दूसरी ड्राइंग शीट पे आप इसको लार्ज नहीं कर सकते, आपको फिर से वहाँ पे प्लेन टेबल कंडक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू परफॉर्म अगेन ए प्लेन टेबल, और उस प्लेन टेबल में आपको बड़ी ड्राइंग शीट या छोटी ड्राइंग शीट अकॉर्डिंग टू स्केल रखनी पड़ेगी. देन यू विल कन्वर्ट योर लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर स्केल. तो अगेन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ रहा, प्लेन टेबल करना पड़ेगा. क्योंकि प्लेन टेबल में आप ड्राइंग एंड कैलकुलेशन, मेजरमेंट एंड ड्राइंग एक साथ करते हो. तो इसलिए ये जो फिफ्थ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है. I think now it is clear to you, and I am going to discuss a few questions to you.
अब एक एक करके सारे बच्चे उसके आंसर देंगे। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल। तो पैरेललिज्म, as I told you earlier, parallelism is the principle of plane table, and in this what is it mean? It means that the plane table is always placed in every station parallel to the position it occupied at the first station. It occupied at the first station का मतलब क्या है कि आपका प्लेन टेबल ए पॉइंट यहाँ पे था. See, look this point. This is your A point. Now I'm going to, this is my Z direction, this is my X direction. Okay, so I think you are clear that this figure in your vertical plane. Okay, and the vertical plane is your this one. इस वाले plane में हम ये बना रहा हूँ figure. ठीक है. As I move to the another point, this is your A point, move to the B point, and the plane table must be like a small b. यहाँ पे स्मॉल a था. ठीक है. तो इस पॉइंट से जब आपने b पॉइंट रेंज किया तो आपने रेंजिंग रॉड से यहाँ पे ड्रॉ किया. सिमिलरली जब आप b पॉइंट पे गए तो b पॉइंट से आपने फिर से क्या वापस किया, a पॉइंट को देखा. तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो, द लाइन इज पैरेलल टू योर ग्राउंड. ठीक है, रेज करी ना आपने, रेज. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पैरेललिज्म. ठीक है. हर स्टेशन पे जो रेज आपकी निकलेगी वो पैरेलल है आपके प्रीवियस वाले स्टेशन से, और साथ में जो आप देखना चाहते हो उस स्टेशन के भी पैरेलल है. दिस लाइन इज पैरेलल टू द पॉइंट ए, सिमिलरली दिस लाइन इज पैरेलल टू द बी. लेकिन जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, कौन सा सर्वे करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं, जब उसमें हम क्या करते हैं, कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, अर्थ कर्वेचर को कंसिडर करते हैं. And you know that whenever we consider earth curvature, so the rays is never be parallel. तो वहाँ पे horizontal surface and level surface का concept आता है. ठीक है, समझ रहे हो ना? Yes sir. बस तो वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे टेलीस्कोपिक वगैरह में जब हम जाएंगे. एंड अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरिएंटेशन. ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर वो ओरिएंटेशन है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सेंटेंस, द मेथड ऑफ कीपिंग द टेबल इन सक्सेसिव स्टेशन पैरेलल टू द पोजीशन इन occupied at the starting station is known as orientation. तो A से B तक जाने की जो भी प्रक्रिया है वो आपकी ओरिएंटेशन है. ऑब्वियसली बात है, आप ये सब चीज़ें ड्राइंग के ऊपर कर रहे हो. ओरिएंटेशन इज डन टू मेंटेन परफेक्टली रिलेटिवली पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द मैप. ऑब्वियसली A पॉइंट और B पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था ना ड्राइंग पे, तो इसलिए हमने ओरिएंटेशन करा. सिंपल डेफिनेशन बोला तो जो भी एक्टिविटी प्लेन टेबल को ऊपर करोगे आफ्टर द सेंटरिंग एंड लेवलिंग इज नोन एज ओरिएंटेशन. सिंपल. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सेंटरिंग एंड लेवलिंग डन इन प्लेन टेबल. किससे करते हैं भाई सेंटरिंग? किससे करते हैं सेंटरिंग? तो करते हैं हम किससे करते हैं, यू फॉर्क एंड प्लम बॉब से करते हैं. लेवलिंग किससे करते हैं, लेवलिंग हम बबल ट्यूब से करते हैं. लेवलिंग किससे करेंगे हम, लेवलिंग आर डन बाय द बबल ट्यूब. ठीक है, बबल ट्यूब. अब कैसे करते हैं, ये आपके ड्राइंग शीट्स है. ठीक है, सपोज इट विल बी सेंटर्ड. अब इसे लेबल करना है. लेबल करने के लिए हमारे पास इसके नीचे इस तरीके से अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको. दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई. सिमिलरली अगर मैं फिगर बनाता हूँ आपका जेड एंड एक्स में, तो ये कुछ इस तरीके से होता. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा ना. तो अब क्या करना है, आपने बबल ट्यूब रखनी है. बबल ट्यूब को पहले यहाँ पे रखना है, बीच में लाना है. ठीक है, उसके बाद बीच में लाने के लिए क्या करते हो आप, इस लेग को या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, एक सर्किल है यहाँ पे देखो ऐसे वाला, इसको दो तरीके से मूव करा सकते हो. एक तो सर्किल से अंदर बाहर, और एक आप इसको सर्किल के पैरामीटर पे. ठीक है, तो वी हैव टू मूवमेंट. द फर्स्ट मूवमेंट इज रेडियली which is inside and outside of the circle, and another one is curve वाला जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है.
पेरीमीटर पे घुमाना है, ठीक है। जैसे आप अपनी टांगों को स्टेबल, मतलब अपनी टांगों को भी खोल दो ऐसे करके, सपोज ये आप हो, ठीक है, पीटी कर रहे हो आप सुबह सुबह, तो आप क्या करते हो, दोनों टांगों को इस तरीके से घुमा देते हो, साइड वाइज स्ट्रेच करते हो ना, ठीक है। तो वो आपका कौन सा मूवमेंट हो गया, जब साइड वाइज स्ट्रेच कर रहे हो, वो आपका मूवमेंट हो गया रेड वाले कलर वाला जो मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि फुटबॉल पे किक मारो, तो फुटबॉल पे किक कैसे मारते हो, अब अपने टांग को क्या करते हो, घुमाते हो सर्किल में, पहले पीछे ले जाते हो फिर लाते हो, ठीक है। तो कर्व किक मारते हो, तो वो आपका कौन सा मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका ग्रीन वाला मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यू आर देयर और नॉट वरुण, यस सर। आ गया समझ में, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। उस लेवलिंग करने से हमें क्या होगा, हमने एक बबल ट्यूब को सेंटर में लाना है, ये जो बबल है ना इसको सेंटर में लाना, जब ये सेंटर में आ जाएगा तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, नाउ इट विल बी चेंज लाइक इन दिस पोजीशन, पहले हमने इसे वाई पोजीशन में किया था, अब हम इसे एक्स पोजीशन में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर अगेन वही दो प्रोसेस करके आप इसको सेंटर पे लाओगे, तो दिस इज द मेथड ऑफ लेवलिंग। I hope you understand. Now I am going to the another topic, that is few things we have to understand. The older plane table is made up of wooden tripod as well as wooden table, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल प्लेन टेबल। आफ्टर दैट वी हैव सम डिफरेंट लाइक दिस वन, ये एल्यूमिनियम वाले आ गए, अब एल्यूमिनियम और इसके ऊपर एल्यूमिनियम का ही आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं Johnson plane table. These are the type of Johnson plane table. Sometimes this upper portion is wooden part like the older one. जो ये सिंपल वन था वैसे वुडन पार्ट है, तो हम इसको कहते हैं जॉनसन वुडन प्लेन टेबल। इज इट क्लियर? So these are the second type of plane table and the third one is coast plane table। अब coast plane table में देखो सब फिक्स्ड है और इसके ऊपर देखो एलिडेट की जगह पे क्या है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट है। सो दिस टेलीस्कोपिक एलिडेट है, दिस इज यूज फॉर हायर रेंज। अब आपका सिंपल एलिडेट आप आंखों से नहीं देख रहे हो, आप टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हो, तो ये आपका यूज होता था जियोडेटिक एज वेल एज कोस्टल सर्वेइंग के काम आता था, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कोस्ट प्लेन टेबल, ठीक है। तीन तरह के प्लेन टेबल मैंने आपको दिखा दिए, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव a picture of, let me show you picture of traditional as well as, so this is your traditional जो आपको लाइब्रेरी जो आपके लैब में भी अवेलेबल है, दिस इज योर कन्वेंशनल एलिडेट ALDAT एलिडेट। इसमें आपका ये वाला क्या है, दिस इज फॉर ओपनिंग फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स, this one is your bubble tube, okay। Here we have a scale attached with the eledate and these are your opening, one opening देखो बेस में है, मिडिल में है एंड टॉप में है, ठीक है। तो इन ओपनिंग से आप क्या देखते हो, ये आपके आई पीस वाली पोजीशन पे फिक्स होती है, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो और एक लाइन ऑफ साइट बनाते हुए रेंजिंग रॉड की तरफ जाते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। सो दिस मस्ट बी रेज, ऐसे करके करते हो, तो दिस इज योर कन्वेंशनल एलिडेट और इसी को हमने रिप्लेस किया है इससे टेलीस्कोपिक एलिडेट, ठीक है। दिस इज योर टेलीस्कोपिक एलिडेट। इसमें जो देखने की प्रोसेस है उसको हम किससे करते हैं, यहाँ पे हमारे एक लेंस होता है जो कि हमारा कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज योर कॉनकेव डबल कॉनकेव लेंस। और टेलीस्कोप का मैंने शायद आपको लेक्चर ऑलरेडी दिया है, आई विल प्रोवाइड यू इन योर ग्रुप,
वो ऑलरेडी सेव्ड है, आप उसे देख रहे हो। डबल कॉन्वेक्टिव लेंस होता है, वो आपका पोर्शन इधर से और इधर मूव करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। तो वहां से आप ज़्यादा दूरी की चीज़ें देख सकते हो। तो यही चीज़ हमारे यूज़ किया गया था कोस्ट प्लेन टेबल में। Okay, now we have only 7 minutes left, and I think we will move fast to the MCQ portion. यस सर। Okay, yes sir, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्लेन टेबल yes इज sir, graphical method of surveying. Principle of plane table is parallelism. Third question, what are the type of plane table? Simple, Johnson, coast, ऑल ऑफ देम। all of. all of those Which is the above, method of plane table? Method पूछा है कि अल्टीमेट क्या करते हो? ट्रैवर्सिंग, लाइन traversing, बना रहे हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग। yes sir, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश मस्ट बी डन व्हेन द प्लेन टेबल इज सेट अप एट मोर देन वन स्टेशन। एक स्टेशन से ज्यादा पे। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, नॉर्थ लाइन तो हम किससे बनाते हैं? कंपास से बनाते हैं, ठीक है ना। तो और ओरिएंटेशन हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। yes sir, नाउ आई एम मूविंग टू सिक्स, डैश मेथड ऑफ प्लेन टेबल इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग इनएक्सेसिबल पॉइंट। इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए हम क्या होता है? इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन, intersection, ठीक है, जहां हम पहुंच नहीं सकते। देखो आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, सी आंसर दिखा है। yes sir, सेवेंथ वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल? एलिडेट होता है, यू फॉर होता है, ट्रफ कंपास होता है, सब होते हैं। वेरी गुड, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो जाएगा। None of the above. वेरी गुड। yes sir, एट्थ क्वेश्चन में जाएगा, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल? रैपिड मेथड कैन बी यूज इन ऑल वेदर। नहीं, ऑल वेदर में यूज नहीं हो सकता। all, ऑल वेदर में कैसे यूज होगा? बरसात के मौसम में बना लोगे तुम ड्राइंग? no sir, रीप्लॉटिंग कैन बी डन। नहीं, रीप्लॉटिंग नहीं कर सी। सकते। तो हमारा C, आंसर C क्या में है? रैपिड मेथड। C, प्लेन टेबल इज रैपिड मेथड है भैया। रैपिड Okay. रैपिड। अभी तो फर्स्ट एडवांटेज पढ़ाया था, सब भूल गए, क्या ध्यान दे रहे हो? है डैश इज यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग द रेज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या होता है? प्लेन एलिडेट से कर सकते हो, टेलीस्कोप एलिडेट से कर सकते हो, साइटिंग भी कर सकते हो, रेंजिंग कर सकते हो। तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी सर आंसर। बोथ है। बोथ है। both प्लेन and टेबल we, सर्वे इज यूज्ड फॉर स्मॉल टू मीडियम स्केल वर्क, प्लॉटिंग टोपोग्राफिकल मैप, फिलिंग द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ ट्रैवर्स। भाई इंटीरियर डिटेल्स तो सर करते ऑल हैं, ऑफ ऑल ऑफ द all, अबव, ठीक है। all, ऑल ऑफ द आंसर दिखा देते हैं हम इसका आपको, देख लीजिए, ठीक है। yes, अब देखिए, यू फॉर किस प्राइमरली यूज फॉर, यू फॉर किसके लिए होता है? सेंटरिंग द टेबल, So centering के लिए. ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द टेबल। बेटा यू फॉर सेंटरिंग के लिए भी होता है, साथ में ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द टेबल। ग्राउंड पॉइंट को ऊपर भी तो लाता है वो, अभी तो यू सर फॉर क्या बोथ ए एंड बी आएगा। सेंटरिंग के लिए, वरना हमारा होता है क्या है? प्लम्ब बॉब होता है। पर बोथ ए एंड बी आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलो पूरे ऑप्शन पढ़ा करो ना, इसीलिए तो फंसते हो। विच टाइप ऑफ प्लेन टेबल हैव ए बॉल और सॉकेट ज्वाइंट टू फैसिलिटेट द टिल्टिंग? ये देखो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, पर ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो आपका एक टेलीस्कोपिक वाला किस में यूज हो रहा था? देखो सर ये जो, जॉनसन प्लेन टेबल वो तो मैंने आंसर दिखा Johnson दिया, लेकिन के- देखो बॉल और सॉकेट, इसको दिखाने के लिए फिर मुझे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो टेबल होती है ना, टेबल ट्राइपॉड से जब अटैच होती है ना, तो वहां पे ये आपको एक ये मिलेगा आपको, ठीक है, जॉइंट मिलेगा। प्लेट जो टेबल होगी वो आपको जॉनसन में मिलेगा, ठीक है। 13 में, विच टाइप ऑफ प्लेन टेबल हैव ए प्रॉपर लेवलिंग हेड ऑफ 3 फुट स्क्रू टू एक्यूरेट लेवलिंग ऑफ। देखिए इसके तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लीजिए। पोस्ट सर्विंग टेबल में ये चीज़ होती है, दो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है भी नहीं तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, तो इसीलिए आप इसे याद रख लीजिए। एमसीक्यू में कभी पूछा, वैसे बहुत रेयरली है कि ये पूछा जाएगा। पढ़िए वाला क्वेश्चन, इफ एक्यूरेट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज टू बी डन इन एरिया प्रोन टू लोकल अट्रैक्शन, इट इज डन बाय, लोकल अट्रैक्शन से है तो इट इज डन बाय बैक साइटिंग। मैग्नेटिक निडल नहीं होगा, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है? मैग्नेटिक रीडिंग आएगी नहीं, तो मैग्नेटिक हम वहाँ यूज करेंगे ही नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे? प्लेन टेबल यूज करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं? बैक साइटिंग करते हैं प्लेन टेबल में, ओरिएंटेशन मेथड के लिए।
द प्रिंसिपल ऑफ resection method is dash to that of the intersection method. तो ये क्या है, ऑपोजिट मेथड है. इंटरसेक्शन रिसेक्शन का क्या है, ऑपोजिट है. ठीक है, तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन है. सर. 16 क्वेश्चन है. प्लेन टेबल सर्वे कैरीज ए लॉट ऑफ एक्सेसरीज विच विद इट विच आर लाइकली टू बी लॉस्ट. यस, होता है ऐसा. प्लेन टेबल डैश आर एडजस्टेबल अवॉइडेबल. ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट एरर को हम एडजस्ट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं. बाकी क्लाइमेट एरर हम हटा नहीं सकते, पर्सनल एरर भी हम हटा नहीं सकते. ठीक है, तो आंसर भी आपको दिख लिया होगा. In plane table surveying, an incorrect scale used by mistake is an example of. Incorrect scale किसका example होगा बताओ? Plotting किसने कर रखी है? Plotting इंसान ने करी है. ठीक है, प्लॉटिंग तो वहाँ पे देखिए. Which is the following are special method of resection. भाई 2 point और 3 point होते हैं, फिर उसमें एक बैक रे मेथड भी है, तो all of above आएगा. ठीक है ना, ये दो तो हमने पढ़े हुए. बैक रे मेथड नहीं पढ़ा था. बैक रे मेथड क्या है, हम पीछे ओरिएंटेशन करते हैं. नॉर्मली व्हाइल वर्किंग विद प्लेन टेबल इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू ओवरलुक एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट? नो पॉसिबिलिटी. अभी पढ़ा था हमने, डिसएडवांटेज में पढ़ा था ना. चलो वही यहाँ पे यूज हो गया. चलो यहाँ से पढ़ते हैं. इन प्लेन टेबल सर्विंग, सबसे लास्ट, Bessel's method is used for the solution of 3 point problem. ये याद रख लीजिए, 3 point problem को हम Bessel's method भी कहते हैं. तो ये चीज़ आपको MCQ जब सॉल्व करनी है. 22 क्वेश्चन में चलेंगे. In plane table surveying, error is plotting are generally dash in nature. Cumulative, compensating नहीं होती है, cumulative errors होती है प्लेन टेबल में, एक के बाद एक जुड़ती है. While executing surveying with plane table, if candidate was not pointed on the same side of station throughout the work, then it will be regarded as. अगर गलत जगह पे आपने एलिडेट रखा है तो उसको कैसे करेंगे? पर्सनल एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर या एरर इन प्लॉटिंग? बताओ, आंसर पता चल गया ना. अगर कोई पर्सनली तो उसको उसने गलत स्टेशन पे रखा है ना एलिडेट को, तो वो पर्सनल एरर हो गया. जब उसको वो गलत स्केल पे ड्रॉ कर रहा है तो वो प्लॉटिंग एरर हो गया. और अगर आपका एलिडेट ही खराब है, आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट ही खराब है, उसके अंदर का लेंस खराब है, तो वो क्या हो जाएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो ये इस तरीके से आपको देखना है. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट MCQ फॉर योर प्लेन टेबल सर्वे. यस सर. ठीक है, ओके. ओनली 12 people are left. Why? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आपकी अभी, एक बार एक से. नहीं सर, बाद में. एक्सक्यूज मी सर. यस, सर हाँ बोलो. सर मैं कह रहा था वो नोट्स शेयर कर दो सर. ये मतलब जो आपने फाइल जिससे पढ़ाते हैं ये शेयर कर दो. चलो मैं इसका वीडियो नोट्स रिकॉर्डिंग बनाने में आसानी रहेगी. ओके ओके, आई एम गोइंग टू शेयर दिस टू यू. ये आप बोल रहे हो ना मुझे ये चीज़ शेयर करनी है Yes, मुझे? ठीक है, Yes, sir. एक ये चीज़ शेयर करनी है मुझे. ठीक है, आज हमने सीखा एक तो ये जी सर. ये करना होगा. यस सर. ठीक है, ये सर रेडिएशन अभी तक जितना कराया है वो शेयर कर दो. मैं सर, देखो पूरा. पहले से फिर नोट्स बनाए जाएंगे. Sir, sir, 1 unit पूरा सर. है 1 unit पूरा. 1 यूनिट पूरा का नोट दे चाहिए आपको. Yes, sir. देखो मैं यस सर. ये मेरा रेडिएशन मेथड है. ओके, सो दिस इज माय इंटरसेक्शन मेथड. ट्रैवर्सिंग, Sir, इसको ये अच्छा, इसका PPT आपको दे दूंगा मैं. ठीक है, इसको PDF सर. PDF. ओके, Yes, sir. PDF दे दूंगा. Yes, sir. और साथ में मैं इसको थोड़ा थोड़ा देखो आज के, तो ये जो है ना, ये तो आज की रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ आपको. तो रिकॉर्डिंग में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गया. 3 पॉइंट एंड 2 Yes. पॉइंट आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा अपने लैपटॉप में वीडियो. ओके, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. और ये आपका क्या था जिसका मैंने बनाया था आपको, ये यूनिट वगैरह का. चलो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इसी के साथ आप